یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں خادم حسین۔ آج کی تازہ خبر، قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال میں سیمینار بعنوان ذہنوں کو سمجھنا، صلاحیتوں کو اجاگر کرنا منعقد ہوا۔ سیمینار میں ڈاکٹر حیدر بنگی ڈائریکٹر سمیت ماہرین نفسیات، طبی ماہرین، ریسرچر، سماجی کارکنان اور متعلقہ شعبوں کے پروفیسرز نے شرکت کی، جنہوں نے نیورو ڈائیورسٹی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اس حوالے سے جدید تحقیق اور عملی اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ذباحت امیر نے بتایا کہ سیمینار کا مقصد نیورو ڈائیورس افراد کے لیے زیادہ جامع، مساوی اور ہمدردانہ معاشرتی اور طبی ماحول کی تشکیل تھا تاکہ ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ پروفیسر اسد تمیز الدین نظامی، پروفیسر و چیئرمین انسٹی ٹیوٹ آف سائیکائٹری، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے اپنے خطاب میں نیورو ڈائیورسٹی پر جدید تحقیق کا جائزہ پیش کیا اور اس امر پر زور دیا کہ طبی نقطہ نظر سے نیورو ڈائیورس افراد کو عام ذہنی امراض سے نہیں جوڑا جانا چاہیے، بلکہ انہیں ان کی منفرد صلاحیتوں کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر خرم صادق، کنسلٹنٹ نیورو ڈیولپمنٹل سائیکائٹرسٹ نے نیورو لاجیکل اختلافات بالخصوص ADHD کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کس طرح نیورو ڈائیورس افراد اکثر زیادہ تخلیقی اور اختراعی سوچ رکھتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی اور پیشہ ورانہ میدان میں بہتر مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ پروفیسر آف سائیکائٹری نے نیورو ڈائیورسٹی اور ذہنی صحت کے درمیان تعلق پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیورو ڈائیورس افراد کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے معاشرتی سطح پر آگاہی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جنرل ریٹائر پروفیسر کرامت حسین، جنرل منیجر قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال جنرل کرامت حسین نے QIH کے ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال نہ صرف جدید ترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے بلکہ نیورو ڈائیورسٹی جیسے اہم موضوعات پر آگاہی کے فروغ میں بھی پیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیورولوجیکل اور ذہنی صحت کے مسائل کے حل کے لیے جدید تحقیق اور عملی اقدامات کو اپنانا ضروری ہے۔ ہمارا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں ہر فرد کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے۔ باقی تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں نیوز کے ساتھ میں ہوں وقار زیدی۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اور یہاں میرے ساتھ ایک سیمینار ہو رہا ہے نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے۔ ادھر میرے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر خرم۔ ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں ہمارے اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں، کن وجوہات کے تحت جو نفسیاتی بیماریوں کا جو بڑھوتری ہو رہی ہے، کن وجوہات کے تحت ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیا وجوہات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اصل وجوہات پہ ہمارا اچھا وجوہات دیکھیں، مینٹل ہیلتھ تو بہت ایک براڈ فیلڈ ہے۔ اس میں جو ریزنز ہیں، اسٹریس سے شروع ہوتے ہیں۔ اسٹریس ہو جاتا ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ایک اسٹگما ہے سوسائٹی میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو چیز ویزیبل نہیں ہے وہ بیماری نہیں ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے ویزیبل تھنگ۔ اور پھر ایٹیٹیوڈس کے سب سے ہی ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، بالکل اللہ خیر کرے گا، لیکن آپ نے بھی اپنے لیے خیر کی دوا اور خیر کی دعا مانگنی ہوگی، دونوں چیزیں کرنی ہوگی۔ تو ملٹیپل ریزنز ہیں۔ میں جس چیز کے لیے یہاں پہ بلایا گیا، ایک سیمینار تھا، وہ نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن، نیورو ڈائیورسٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مختلف کیوں ہوتے ہیں اور ان مختلف لوگوں کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اسٹرینتھس ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان ایریاز کو اسٹرینتھن کر سکیں جو تھوڑے سے ویک ہیں۔ اور یہ میسج اور یہ پیغام کہ مختلف ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، مختلف ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم سارے چونک جائیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ ہر ایک بندہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک خاندان میں 4 بچے ہوں، ان چاروں کے موڈ، مزاج، ایٹیٹیوڈ سارے جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگ مختلف کیوں ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے کام کیوں کرتے ہیں، اور اسی کا مطلب نیورو ڈائیورسٹی ہے۔
डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के जो मुतासरीन हैं मरीज़ जो हैं उनकी क्या तादाद बढ़ रही है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये मोरूसी बीमारियों में इसको शुमार करेंगे हम? ठीक, पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में ग्लोबली मेंटल हेल्थ क्राइसिस ज़्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन उसके साथ जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है हमारा कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों को घर बार चलाने के पैसे नहीं हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम अपने बच्चों और बीवियों का पेट कैसे पालेंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में। जब तक आपके दिमाग को पता नहीं है कि ये एक कंडीशन है जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है, उस वक्त तक आप उस चीज़ को देख नहीं सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक पैगाम पहुंचाना कि मेंटल हेल्थ क्या है, न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है, किस वजह से होता है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, अभी जो हमने माहिरीन सेहत को देखा है, अमूमन हम किसी भी बीमारी के लिए उनसे रुजू करते हैं तो वो फ़ौरन सकून और जो अद्वियात है फौरी तौर पर वो तजवीज़ करते हैं, और वो कहते हैं कि ये भी आप अपनी दीगर अद्वियात के साथ, क्या ये तरीक़ेकार उनका दुरुस्त है? अच्छा देखें, ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके अलावा और स्ट्रेटजीज भी होती हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं, जैसे CBT हो गया, काउंसलिंग हो गई, उसके अलावा साइकोथेरेपी हो गई। लेकिन अगर हम इर्द गिर्द देखें, हमारे पास वो स्किल सेट ही नहीं है, हमने वो चीज़ें लोगों को ट्रेन ही नहीं किया उस चीज़ों में। तो हमारे पास क्विक फिक्स क्या होता है कि किसी को आप दवाई दे दें और उसके साथ 1-2 सेशंस लगा लें जो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ हों जो ट्रेन भी नहीं हुआ या नहीं हुई उस चीज़ों में। तो ऑल्दो ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है ये भी देखना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सबाहत हमीद साहिबा। इनसे हम पूछते हैं कि क्या वजूहात है हमारे इस माशरे में जो नफ्सियाती बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है, इसकी असल वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जो सेमिनार कर रहे हैं, नफ्सियाती बीमारियां दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और आपको पता है WHO की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2030 में जो डिप्रेशन है वो दुनिया की नंबर 1 बीमारी होगी। इस वक्त दुनिया की नंबर 1 बीमारी दिल के अमराज है, लेकिन नफ्सियाती बीमारियों में इतनी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है कि आने वाले वक्तों में तकरीबन हर एक या दूसरे फ़र्द को डिप्रेशन या नफ्सियाती अमराज का सामना करना पड़ेगा। अब नफ्सियाती अमराज जो है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात है, मुख्तलिफ़ वजूहात है जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में मुख्तलिफ है। अगर मैं आपको अपने मुल्क की मिसाल दूँ, आप हमारे अपने मुल्क के हालात देख लें, उसमें बेरोज़गारी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा माशरती अदम तवाज़ुन है, नाइंसाफ़ी है, और उसके अलावा हमारी सोसाइटी में इंटर फैमिली मैरिजेज़ हैं। इंटर फैमिली मैरिजेज़ के अलावा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा माशी मसाइल के अलावा ज़ाती मसाइल, परेशानियाँ, टेंशन, और उसके अलावा अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहता है कि जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और आप ये कहते हैं बीमारी है और उसका इलाज करते हैं, इसी तरह से ज़हनी बीमारियाँ हैं। ज़हनी बीमारियों के लिए कोई वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, आप देखें हर दूसरे तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर और शुगर होता जा रहा है, इसी तरह से ज़हनी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर साहब ये हमारी नाज़रीन को बताइएगा कि ये मौरूसी बीमारी काउंट होगी और किस उम्र के मरीज ज़्यादा अफेक्टेड है? नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियों में मौरूसियत बहुत सारे इसके अवामिल होते हैं, उसमें मौरूसियत भी होती है, और हर उम्र के अफराद को ये बीमारी हो सकती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी उम्र के ये अफराद हो सकती है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, 29 साल से कम उम्र के अफराद हैं, तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्र है कि हमारे नौजवानों में नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह के इस नौजवानों में आपको पता है मनशियात का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो परेशानी है वो दुगनी। आज यहाँ जो सेमिनार आपने मुनक़िद करवाया, इसकी क्या मक़सद है? ये सेमिनार हमने मुनक़िद करवाया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा और सबसे पहला सेमिनार है। इसमें
में हमने यूके से, लंदन से एक स्पीकर को मैंने इनवाइट किया है। आजकल हमारे माशरे में बच्चों में तेज़ी से एक बीमारी और बड़ों में भी है, ऑटिज़म, ADHD के नाम से एक बीमारी है। पाकिस्तान में इसके ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट हैं और ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। उस बीमारी के बारे में हम आगाही दे रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्कूल के टीचर्स और डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है। और हम उनको ये आगाही दे रहे हैं कि इस तरह के बच्चे और बड़ों में अगर ये बीमारी है तो उनको किस तरह से समझा जाए, उनको सिर्फ लेबल लगा के दवाई ना दी जाए, बल्कि उनको उनके टैलेंट को समझा जाए, उनको माशरे में कारआमद किस तरह से बनाया जा सकता है और उनके पेरेंट्स की किस तरह से हेल्प की जा सकती है और आगे किस तरह से उनको स्कूल्स में, घरों में और उनके पेरेंट्स को सपोर्ट फराहम की जा सकती है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अक्सर हम लोग जब एज अ मरीज बनते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो किसी भी बीमारी की सूरत में वो हमें जो एंटी डिप्रेशन डोज जो हैं वो लाजमी तजवीज़ कर देते हैं, लाजमी खाने के लिए कहते हैं। क्या ये फौरी तौर पर डायग्नोज होने से कबल ऐसी डोज का इस्तेमाल सही है? नहीं, डिपेंड करता है। ये मिथ है, ये आप मिथ बस्टिंग है ना, ये जब आप मेरे क्लिनिक पे आएंगे ये मतलब करूँ कि ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।